Good morning, everybody. In the previous video where we have gone through the electrical capacitance, which is the measure of the ability to hold electric charge, कितना ज़्यादा charge को store कर सकता है, that ability of a conductor is your capacitance, right? And we know that greater the charge on the conductor, greater will be its potential because V is directly proportional to Q, right? From the formula itself, and Q is equal to CV. This is the formula we have to use in numericals also, and C is the that is proportionality constant called the capacitance of the conductor, which is equal to Q upon V. Its unit is farad or coulomb per volt, right? 1 farad, basically the farad is the unit of the capacitance. 1 farad is a very large unit which we have gone through earlier. That is, if a conductor has the capacitance 1 farad, then its radius will be equal to 9 into 10 raised to power 6 kilometer, which is hardly possible, right? That is, which is 1500 times greater than the radius of the earth, which is a huge job. We can't do that, right? So we use the millifarad, the microfarad and the picofarad unit in existence, right? So 1 farad is defined as, if that is the charge of 1 coulomb increases the potential by 1 volt, then the capacitance is said to be 1 farad. We have find the capacitance of an isolated spherical capacitor, which is equal, that is proportional to R, that is the radius of the. Our today's main concern is to find the factors on which the capacitance of a conductor depends and on what factors it does not depends. The very first factor is the shape and size of the conductor. Greater will be the shape or volume, greater will be the storage capacity, right? The nature of the surrounding media, which we call the permittivity of the medium, right? उस पे भी depend करता है. And next, the presence of other conductors in its neighborhood, because it will increase the capacitance. If there are more conductors in its neighborhood, then it will increase the capacitance. So it depends upon other conductors in its neighborhood also, right? And the two main factors on which it does not depends are, it does not depends upon the nature of its material. कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, उस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, राइट? अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन द कंडक्टर, चार्ज कितना है कंडक्टर के ऊपर, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि ये तो स्टोरेज कैपेसिटी है, चार्ज कितना है कितना नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करता है, राइट? चलिए, अब अच्छा, जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला किया उसके ऊपर ही वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हमारे पास, विच इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड इट केम इन मार्च 2020 एग्जामिनेशन, फिजिक्स एग्जामिनेशन, CBSE एग्जामिनेशन, एंड 2015 as well as 2013 it came, right? So we have to do this as it is a very important numerical based on capacitance and potential, right? So 8 identical spherical drops, each carrying a charge of 1 nanocoulomb, right, are at a potential of 900 volt each. We have given 8 identical spherical drops. जैसे हमने पीछे किया था कि कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल है R के, जहां स्फेरिकल कंडक्टर के लिए किया था, राइट? तो यहाँ 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स आर गिवन और हर एक का चार्ज है नैनो कूलम एंड आर पोटेंशियल आर एट ए पोटेंशियल ऑफ 900 वोल्ट ईच, और हर एक का पोटेंशियल है 900 वोल्ट. क्यों? चार्ज इक्वल है तो पोटेंशियल भी इक्वल दिया गया है हर एक का, राइट? तब all these drops combine together to form a bigger drop. जब इन सभी ड्रॉप्स को इकट्ठा किया गया and forms a bigger drop. अब उस बिगर ड्रॉप का हमें क्या फाइंड करना है बच्चा? पोटेंशियल फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है. एंड गिवन इज टेक कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू आर, और इसी से हमने अपना आंसर स्टार्ट कर देना है. क्लियर? क्वेश्चन दिया गया है, वी हैव 8 ड्रॉप्स, राइट? हर एक ड्रॉप का चार्ज है 1 नैनोकूलम एंड आर एट ए पोटेंशियल ऑफ 900 वोल्ट ईच. These drops are combined together into a bigger drop and you have to find the potential of the bigger drop, right बच्चा? चलिए, we'll start. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपेसिटेंस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप. अभी बोला गया है कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो प्रोपोर्शनल टू आर हमने लिख दिया. प्रोपोर्शनैलिटी हटा के वी यूज ए कांस्टेंट, लेट बी स्मॉल के आर, सी इज इक्वल टू के आर. दिस इज वन ऑफ आवर इक्वेशन फॉर द स्मॉल ड्रॉप, राइट? देन चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप, क्यू. अभी पीछे फॉर्मूला किया था Q इज इक्वल टू CV, अगर याद हो किया था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इज इक्वल टू CV, राइट? तो Q इज इक्वल टू C की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे और V हमें हर एक ड्रॉप का दिया गया है कितना? 900 वोल्ट दिया गया है. तो KR इंटू 900, कूलम इज द यूनिट, राइट? तो 900 KR कूलम आ गया चार्ज हर एक ड्रॉप का.
अब लार्जर ड्रॉप का कितना होगा, लेट इट बी क्यू डैश विद अ चार्ज, तो वो कितना होगा, 8 ड्रॉप्स हैं तो 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्यू से। एक ड्रॉप का, एक सिंगल ड्रॉप का चार्ज क्यू है तो बिगर ड्रॉप का कितना हो जाएगा, 8 इंटू क्यू। क्यों, क्योंकि 8 ड्रॉप्स हैं, हर एक का क्यू है, तो 8 क्यू विल बी द चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप विच विल इक्वल टू 8 क्यू की वैल्यू ऊपर से हमने ये वाली पुट की एंड इट्स 8 9 जो 72, इट इज 7200 kr कूलम, राइट। अभी भी हमारा क्वेश्चन नहीं निकला है, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल। अभी हमने सिर्फ क्या निकाला, चार्ज निकाला है, राइट बच्चा। अब देखो जितना वॉल्यूम 8 ड्रॉप्स का था उतना एक सिंगल का बनेगा, तो इक्वेशन हम बना लेंगे। दैट इज, अगर मैं यहीं पे लिख दूं वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉलर ड्रॉप्स, क्योंकि सभी को कंबाइन करके ही तो बिगर ड्रॉप बना। दैट इज वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स, 8 स्मॉल ड्रॉप्स, राइट। और बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम, बिगर ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर रख लेंगे, स्मॉल का तो हमने स्मॉल आर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ड्रॉप का स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही बनेगा। और वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स, एक का कितना है, एक का कितना आएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और 8 का कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। जो कटता है काट दीजिए, पाई पाई will also cancel and you will left with r cube is equal to 8r cube, right? And r comes out to be cube root बन जाता है ना बच्चे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे जाके cube root, तो r का भी 3 1/3, तो 3 will cancel, it remains r, तो ये बन गया r 8 1/3, यही आएगा। और 8 1/3 कितना होता है, 2, तो इट बिकम्स 2r, ये कितना बन गया, 2r बन गया। दैट इज रेडियस ऑफ द कैपिटल बिगर ड्रॉप इज 2r इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉलर ड्रॉप्स रेडियस। ये पता लगा 8 1/3 क्यों, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो बनता है 2 की पावर 3, राइट। तो क्यूब रूट है तो ये आ जाएगा 8, क्योंकि क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट को ऐसे ही लिखते हैं हम, तो ये आ गया हमारे पास 2r के बराबर। अब हम निकाल लेंगे कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप, बता दीजिए जल्दी से कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप का फॉर्मूला, क्योंकि हम कैपेसिटेंस निकालेंगे फिर पोटेंशियल निकाल देंगे। कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप कितना आ जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप दैट विल बी, लेट इट बी, उसका सी था तो इसको सी डैश रख लेते जैसे क्यू डैश रखा था। सी डैश विल बी इक्वल टू स्मॉल के इंटू, कांस्टेंट सेम रख लेते हैं, स्मॉल के इंटू कैपिटल आर, और कैपिटल आर अभी निकाला 2r के बराबर है, तो k इंटू 2r, राइट, ये आ गया। अब k इंटू 2r तो आ गया, 2kr आ गया, तो पोटेंशियल कम्स आउट टू बी, v डैश रख लेते हैं, उसका v था तो इसका v डैश, तो v डैश कम्स आउट टू बी q डैश अपॉन c डैश, क्योंकि q इज इक्वल टू cv होता है, डैश डैश बिगर ड्रॉप के लिए यूज कर रहे हैं तो v डैश निकल जाएगा। q डैश यहाँ पे निकाला था 7200 kr, और c डैश अभी निकाला k इंटू 2r, k विल कैंसिल, r विल कैंसिल, एंड 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो 3600 वोल्ट आ गया इसका पोटेंशियल। बच्चा इस न्यूमेरिकल को बार बार सॉल्व करना, वैल्यूज चेंज करके करना, रेफरेंस बुक से देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और बी परफेक्ट इन दिस न्यूमेरिकल, ताकि जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल आए यू आर एबल टू डू, राइट। थैंक यू वेरी मच।